Assalamu alaikum. Where are other students? They haven't joined the class till now. Hamza? One more has gone. Hamza, are you there? Yes, sir. लोग किधर हैं? सर पता नहीं। एक तो मैंने भी लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा 4-5 मिनट मैं लेट हो गया हूँ, बाकी तो आप लोग अभी तक नहीं हो। नहीं होती तो अभी हुई। क्या? ओपन किया था, मीटिंग स्टार्ट हुई है, अभी हुई है थोड़ी देर पहले। मैं भी कह रहा हूँ ना कि आप लोग अभी थोड़ा सा, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप अभी तक सिर्फ एक या दो स्टूडेंट है, बाकी किधर गए? अगर ये अभी तक नहीं आते 2-3 मिनट तक, तो फिर हम अपना लेक्चर जो उनसे वो स्टार्ट करते हैं। दे शुड सफर देम।
I think we should start the class now. हमजा कुछ लास्ट टाइम की डिस्कशन याद कर सकते हो? हमजा, उसामा, Usama, are you there? Are you present in the meeting? Hamza? आप लोग मुझे अपने रोल नंबर भेज दें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो सके, बाकी सबकी एब्सेंट लगाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है ना जिस तरह से ये कर रहे हैं। So we were discussing last time Coriolis force. We have discussed about wind. Wind, the cause of wind is pressure difference. In our world, on Earth, there is an atmosphere around it. Atmosphere comprises of different gases. These gases include nitrogen, 78%, and oxygen, 21%. Okay. And all the other gases, remaining gases, are in that 1%. Right? So that atmosphere is the cause of life. This atmosphere, or the molecules of these gases, are kept by the Earth because of its gravity. They are attracted to the Earth because of gravity, right? So that's why there is atmosphere around our world or around the Earth. Now, there are winds on our Earth. These winds are blown because of the pressure difference. The main reason for these winds is pressure difference. We have discussed earlier that the cause of the wind energy is basically solar energy. Only 1% of the solar energy is reaching on Earth is absorbed by the atmosphere or by the wind energy. The wind energy is basically only 1% of the solar energy reaching on Earth. सूरज की रोशनी, उसमें जो एनर्जी है जो जमीन तक पहुंचती है, सिर्फ उसका 1% है जो विंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैं एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, विंड एनर्जी में कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, so 1% of the wind energy is able to power the whole world and meet the requirements of the whole population on Earth in terms of electricity or power. Okay, so wind energy का 1% हमारी जरूरियात के लिए काफी है अगर हम उसको हार्नेस कर लें। Now the cause of wind is pressure difference, and that pressure difference is caused by the solar energy. We had discussed it earlier that solar energy, sun's energy, will fall maximum on its equator. This was evident from here, from this picture, that this is the region which will get maximum energy. Why? Because it is perpendicular to the sun rays coming to the Earth. When solar energy reaches here, the angle which is tangent to the Earth's circle here is like this. So if we keep a solar plate over there, it will be like this, facing solar energy, right? Sun rays.
and sun rays are not falling perpendicular to it. So only a small portion of the solar energy is coming to this region. So for these reasons, North Pole and South Pole are get less amount of energy, right? And they are much colder as compared to equator. Since equator gets most of the energy, the temperature on equator is high normally. Now, now the next thing is that since solar energy or sun rays fall on equator with most intensity in this region, the atmosphere gets heated up. Once atmosphere heats up, it causes there is low pressure generated in the atmosphere in that region. That low pressure is because of lower density and high temperature. When it gets low density and high temperature and low pressure, the high pressure air from this region will and this region will come here to take place of that low pressure region to normalize the pressure balance. So in that process, there will be wind blown. So that is the reason of winds blowing, right? So temperature directly is not involved, but indirectly it affects, right? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटमॉस्फेयर का ये विंड का जो टेम्परेचर है यही वो टेम्परेचर है जो हम मेजर करते हैं. आज अगर टेम्परेचर ज्यादा है या बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे होते हैं, उसका टेम्परेचर आज लो हुआ है. और वो क्यों होता है? जमीन ठंडी या गर्म होगी, ठीक है. जमीन अगर गर्म हो गई है तो उसके ऊपर की जो सी हवा है वो उस एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी और वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके टेम्परेचर गेन करेगी, ठीक है. और उस टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे होते हैं. सो क्योंकि आप देख सकते हो कि सनी डेज में मतलब मई जून में आप अगर नंगे पांव फर्श पे चलो तो यू फील द रियल टेम्परेचर ऑन अर्थ, ऑन लैंड. Same is true these days. Okay, so so wind is caused by pressure difference. Now there are when there is warm air, it rises up, and the cool air, if it is there on in the skies, in the clouds, it will fall down. So cool air sinks, warm air rises up. So so wind blows from areas of high pressure to low pressure, ठीक है. So यहाँ पे low pressure generate हुआ है, wind यहाँ से उठ गई है, ऊपर की तरफ चली गई है हवा जो सी है, और इधर नेचुरल कन्वेक्शन स्टार्ट हो गई है और यहाँ से ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे क्योंकि उठ रही है और ये उसकी जगह लेने के लिए आ रही है. We also discussed this that there can be divergence and convergence of air. These are these ellipses show the regions of the pressure, right? If there is higher pressure inside, it will diverge out in this manner. If there is low pressure inside in the inner ellipse, then it will converge in this manner. This is shown in the pictures in these pictures, right? And this as well. Now we were discussing there are two kinds of winds which are global and local. Local winds are because of the regional conditions. Because of the conditions created in the region, pressure differences are generated, and because of that pressure generation, winds blow. Whereas in global winds, those winds blow over the globe, over the
Earth for a longer distance. And since they blow around the globe, these are called global winds. And because of the solar energy falling over Earth, there are certain conditions which are generated, right? So because of those conditions, global winds blow. We had discussed this, coastal areas. Now, another factor is that in the global winds, certain forces affect, right? This includes the Coriolis force, gravity, etc. Now, we want to understand Coriolis force. How many of you know what is Coriolis force? किसी को आइडिया है Coriolis force क्या है? मुनीर रशीद, नो सर। आपने लैब में नहीं देखा हुआ, डायनामिक्स की लैब में? So let's see what is Coriolis force. Okay, I'll show you a video. Coriolis force is very important in knowing the direction of winds which blow globally, right? So for global winds, Coriolis force plays an important role. Now, if a car is moving on the globe, on the earth, from this distance to this distance, it is on the earth, right? So it will stick to the earth and it will keep on moving. We had discussed last time that the radius of the earth is almost same. It is spherical in shape, right? But it revolves around an axis, spinning axis, which we had seen, which is 23.5 degrees. And we know that since Earth is spinning around that axis, there is an angular momentum associated with the mass of Earth and also with the atmosphere associated with it. And that momentum is to be conserved. Now, for angular rotation and for angular momentum, it will be maximum based on the distance r from the axis of rotation. So Earth's velocity, tangential velocity, is maximum on equators, right? It is 0 at North Pole and South Pole. ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? Now, the particles of the atmosphere, they have to move around the earth, but they are not associated with earth. ठीक है, गाड़ी ने अगर जाना है तो वो यहाँ से ये डिस्टेंस इस तरह से अगर हमने इस पे ट्रेवल करवाना है इस डायरेक्शन में नॉर्थ की साइड पे, तो वो इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी. लेकिन अगर जहाज ने जाना है तो जहाज ने जमीन को पकड़ा हुआ नहीं है, जहाज फिजा में है, अर्थ रोटेट कर रही है. ठीक है, जहाज इधर है, ठीक है ना, ये उसके साथ अटैच नहीं है. इसी तरह एयर के पार्टिकल्स भी अटैच नहीं है, तो उनके ऊपर जब वो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स लगेगी. Coriolis force is a fictitious force. It is not actual force. It depends upon the frame of reference from where you are watching it. अगर आप जमीन से बाहर खड़े होकर देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है ये सीधा ऐसे जा रहा है. अगर इस किसी प्लेन ने यहाँ से ऐसे ट्रेवल करना है,
लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, वो सीधा ही जाना चाहता है, तो आपको पता चलेगा जी कि ये अर्थ जो सी है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, नहीं सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। अगर हम नॉर्थ से देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम साउथ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब अगर मैं स्पेस में चला जाऊं और नॉर्थ से मैं अर्थ को देख रहा हूं तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है। अगर मैं साउथ की तरफ चला जाऊं, नीचे से देखूंगा, नीचे मीन्स साउथ, ठीक है, जो हमने कन्वेंशन ली हुई है, अदरवाइज वी कांट से व्हाट इज अप एंड डाउन, ये सिर्फ हमारी कन्वेंशन है, ठीक है। तो नीचे से अगर मैं देखूंगा तो मुझे यूं लगेगा कि अर्थ जो सी है ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही है, ऊपर से काउंटर क्लॉकवाइज, नीचे से क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अच्छा जी, अब उसके बाद अब इसे जो ऑब्जेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो इसके ऊपर इधर ट्रेवल कर रहा है, वो एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन, ये वाला जो सा पोर्शन था अर्थ का, इतनी देर में, जितनी देर में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, प्लेन ने, ये वाला पोर्शन इधर ट्रेवल कर लिया, ठीक है, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग। तो जहाज ऐसे जा रहा है और ये वाला जमीन का पोर्शन जिधर आपने अप्रोच करना था वो इधर ट्रेवल कर गया। तो इधर खड़े लोग, बंदे को जो जमीन के ऊपर खड़ा है, वो ऐसे नजर आएगा कि जहाज ऐसे चला गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा इसको वीडियो में कि ये किस तरह से हो रहा है।
So so you have seen Coriolis force कि यहाँ पे इक्वेटर पे जो सी अर्थ है इसकी स्पीड मैक्सिमम है। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो क्योंकि ये अगर जहाज भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहा है, अर्थ भी साथ में मूव कर रही है, लेकिन इसका अपना जो मोमेंटम था वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो वो अब उसने उसको कंजर्व करने के लिए जो उसका रेडियस कम हो रहा है अर्थ का स्पिनिंग एक्सिस से, जहाज का भी वो कम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसको कंजर्व करने के लिए इसकी जो सी डायरेक्शन है कुछ साथ साथ अपनी जो सी वो डायरेक्शन है उसको चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट जो सा ये बढ़ता जाएगा।
सो हमारे लिए जो इन शॉर्ट याद रखने की बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियालिस फोर्स के नतीजे में ऑब्जेक्ट्स ने राइट की तरफ टर्न करना है, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन हो तो राइट की तरफ और क्लॉकवाइज स्पिन हो तो लेफ्ट की तरफ, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज स्पिनिंग में राइट की तरफ और क्लॉकवाइज स्पिन में लेफ्ट की तरफ टर्न करती हैं चीजें। और ये ग्लोबल विंड्स में आप ये फिनोमिना देखेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, इसकी वजह से लो प्रेशर रीजन जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इर्द गिर्द हाई प्रेशर रीजन है, फिर उसके बाद फिर अगेन एक लो प्रेशर रीजन जनरेट होता है और फिर यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है निस्बतन इधर के हाई प्रेशर रीजन से। तो अब हमारे जो से रीजन है वो कुछ इस तरह से बनते हैं। हाई प्रेशर रीजन जो पोल्स पे है, इक्वेटर पे लो प्रेशर है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर के बाद लो प्रेशर है और फिर हाई प्रेशर है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। और this high pressure is much less as compared to this high pressure. This low pressure is more than this low pressure. This is lowest pressure. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा मिल रही है। अच्छा, अब उसके बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर ने मूव करना है, इधर से इस तरफ, इधर से इस तरफ, इधर से इस तरफ, इधर से इस तरफ, ठीक है। तो अब जब ये मूवमेंट है एयर की, तो ये अपनी डायरेक्शंस चेंज करेगी, ठीक है। अब हमारे रीजन्स जो से हैं ये हर 30 डिग्री के ऊपर है। ये लैटिट्यूड की बात हो रही है, 30 डिग्री। हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सोलर एनर्जी के चैप्टर में कवर किया था कि ये हम मेजर करते हैं स्फीयर के सेंटर से। सो फ्रॉम सेंटर इट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह ये 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। हम इस तरह जब एंगुलर पोजीशन की बात करते हैं तो दो एंगल से हम पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर लेते हैं। लैटिट्यूड मींस कि ये सेंटर है तो इधर से हम इस तरह से एंगल मेजर किया है या इस डायरेक्शन में ऐसे। लॉन्गिट्यूड मींस कि अब हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे। हमने ये ग्रीनविच का पॉइंट रखा हुआ है जो 0 है, ठीक है, और उससे हम देखते हैं इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इतना इस साइड पे है या इस साइड पे है, ईस्ट या वेस्ट पे, ठीक है। तो हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि यहाँ पे जो सी वो मार्किंग हुई है लाइंस की, मेरिडियंस की, ठीक है, ऐसे, और ये लैटिट्यूड की उनसी लाइंस है, ठीक है। तो उनसे हम अपनी पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। सो एयर के लिए, ग्लोबल विंड्स के लिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये हमारे स्पेशल रीजन्स हैं प्रेशर के। 0 डिग्री पे लो है, फिर एवरी 30 डिग्री हाई, लो, हाई, ठीक है। और उसके बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर ने मूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इधर से इस तरफ जा रही है और इधर जा रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स ने राइट की तरफ टर्न करना है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो राइट की तरफ टर्निंग जो सी है वो देख लो, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यूं टर्न कर देगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये यूं टर्न कर देगा। अब उसके बाद winds get names its name from the direction it is blowing. अब इस डायरेक्शन से विंड का नाम है जहां से ये ब्लो कर रही है, और ये कहां से है, फ्रॉम, जहां से ये स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज पोल, पोल, ठीक है, ये इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। सो दिस इज पोलर ईस्टर्लीज कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है,
और ये वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से आ रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। और ये वाला पोर्शन जो सा है ये ट्रेड विंड्स कहलाता है, ये भी ट्रेड विंड्स है, ठीक है। सेम नाम है दोनों तरफ। सो दिस इज डोलड्रम। अब यहाँ पे जब एयर ने नीचे की तरफ आना है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। सो इस पोर्शन में हवा नहीं चल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डोलड्रम। तो एक्चुअली एंशिएंट यूज ऑफ विंड वाज फॉर क्लोथ ड्राइंग एंड फॉर मूविंग द शिप्स, ठीक है, फॉर सेलिंग द शिप्स। सो शिप्स वहां पे चलेंगे जहां पे हवा होगी। तो विंड के बारे में सबसे अच्छा नॉलेज सेलर्स को होता है, ठीक है, और था, और विंड का भी, वेव का भी, ठीक है। और दिस इज हिस्टोरिकली द मोस्ट नॉलेजेबल पीपल अबाउट विंड्स वर, वी कैन से, सेलर्स। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जहाज इस तरह से चलाने होते थे विंड के थ्रू। उस वक्त इंजन नहीं होते थे, मोटर्स नहीं होती थी, तो उन्हें उन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। So this was the region where most of the trading were done and most of the ships used to travel. दुनिया में हमारी मोस्टली इसी रीजन में है, ठीक है, पॉपुलेशन भी। तो नॉर्थ में तो बहुत ठंड पड़ती है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और दूसरे जो हैं वहाँ पे तो ये एनर्जी के बगैर लाइफ बड़ी नामुमकिन सी बात थी पुराने वक्तों में, ऐसे 200 साल पहले, 300 साल पहले। वो सिर्फ कज़ाक और इस तरह के लोग ही वहाँ पे रहा करते थे, जिन्होंने जहाज़ों को लूटना होता था या और दवाइयाँ करनी होती थी, ठीक है। कि अदरवाइज जितनी भी सिविलाइज्ड नेशंस थी वो मोस्टली ये ऐसे रीजन में थी जहाँ पे लाइफ इजीली पॉसिबल है। कनाडा और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्थ की तरफ जो उनसे कंट्रीज हैं उनमें लाइफ आज पॉसिबल है, क्योंकि आज हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स का को बर्दाश्त कर सकते हैं एनर्जी की वजह से, अपनी बॉडीज को गर्म रख के, अपने घरों को गर्म रख के, अपनी गाड़ियों को, ट्रांसपोर्टेशन को गर्म रख के। अदरवाइज पहले पॉसिबल नहीं था। सो दिस रीजन वाज फॉर mainly for trading, ठीक है, used for trading. So these are called trade winds. Doldrum because the ships used to, if they come in this region, there was no wind and they will get stuck, ठीक है। और वो बड़ी मुश्किल से फिर यहाँ से उनको जो सा था ना वो निकालना होता था, कि उसके अदरवाइज विंड ना होने की वजह से वो इधर आकर रुक से जाते थे इक्वेटर के ऊपर। सो दीज आर ग्लोबल विंड्स। Global winds travel long distances. They are due to the conditions generated on Earth because of the sun and because of the rotation of Earth and fictitious forces like Coriolis force, right? So doldrum 0 degree, which is equator, 30 degree ट्रेड विंड्स, ठीक है। इस रीजन में मोस्टली आपके हॉर्सेस भी ट्रेवल करते थे, तो ट्रेडिंग जो सी है वो हॉर्सेस के थ्रू भी पॉसिबल थी। सो दिस इज 30 डिग्रीज latitude is horse latitude, 60 degree is prevailing westerlies, and then 90 degrees polar easterlies, ठीक है। So doldrum, these are located at equator. Surface winds are calm and weak. Today, to be stuck in doldrum means that you would like to be doing something, but you are stuck waiting for something to happen so you can begin moving forward. So ये doldrum की definition है, ठीक है। Sailors found that there was no wind near the equator for a period of time. The ships were essentially stuck in one place, not being able to move forward. These calm periods were called doldrums. Trade winds named from their ability to quickly propel trading ships across the ocean.
found between 30-degree latitude and the equator, steady and blow about 11 to 13 miles per hour. In northern hemisphere, the trade winds blow from northeast and are known as northeast trade winds. In southern hemisphere, the winds blow from southeast and they are called southeast trade winds. So prevailing westerlies जो हैं जो 60 डिग्री पे 30 to 60 डिग्री के दौरान, strong winds located in the belt from 30 to 60 degree latitude on both hemispheres has an impact on US weather. Or polar easterlies, cold but weak winds near north and south poles. US weather is influenced by these. Cooling takes place between 50 to 60 degrees latitude as it approaches the pole. Now jet streams. जेट स्ट्रीम्स ये है जी कि जब ये पूरे का पूरा जो है ना वो जो ग्लोबल विंड की कंडीशन है, विंड जो है अराउंड द ग्लोब मूव कर ले, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये टोटल इसने पूरा ग्लोब को कवर किया हुआ है। नॉर्मली वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे चलती हैं लेकिन अराउंड द ग्लोब पूरा नहीं होता, ठीक है। डिस्कवर्ड इन 1940s, कैन बी फाउंड इन द upper troposphere. Strong, high-speed and high-pressure winds moves west to east across the US, moving storms. ये देख लें, ये इसने पूरे का पूरा ऐसे सर्कल मुकम्मल किया हुआ। Jet streams form at latitudes where wind star systems come together. High-speed westerly winds form high above the surface. So ये इसकी वो है समरी है, ठीक है। पोलर ईस्टर्लीज फ्रॉम ईस्ट 90 to 60 degree, prevailing westerlies 30 to 60 latitude from the west, or trade winds from east 0 to 60, 0 to 30, ये northern थी। Horse latitude named because boats stalled and horses had to move, ठीक है, 30 degree latitude। Doldrum intertropical convergence zone, equators. Trade wind converge from north and south, named because boats also got stranded here. So what is monsoon? Monsoon में रीजन उसी तरह से है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि समंदर के ऊपर एयर जो है वो कम ठंडी होती है या गर्म होती है एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। तो गर्मियों में शदीद जब गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है, तो लैंड हीट अप होती जाती है, लो प्रेशर रीजन जनरेट होता है, और इसी तरह ये वाला पोर्शन है जो कम एनर्जी जिसने रिसीव की हुई है, यहाँ से कोल्ड विंड्स जो से ये ट्रेवल करती हैं, ये इधर मॉनसून का बायस बनती है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और इसी तरह विंटर में साइबेरियन हाई हीट सिंक्स जो से यहाँ से ये हीट ट्रेवल करती है, और ये इस तरफ हो जाती है, ठीक है। The heat source involved in the summer monsoon resides over the plateau of Tibet and the eastern foothills of the Himalaya, where the heat sink occurs over the southern Indian and Madagascar, a region where relatively cloud-free air cooled by emitting infrared or long-wave radiation into the space. Likewise, the heat source of the Australian summer monsoon resides in which many meteorologists call the Maritime Continent, a region made up of parts of Southeast Asia and the island of Indonesia and Philippines, while the heat sink resides over Siberia. So यहाँ पे ये हाई प्रेशर रीजन है और ये वाला इधर समर है, ठीक है, इधर विंटर है, यहाँ से इस तरफ को ट्रेवल करते हैं, और इसमें ये यहाँ पे समर है, इधर विंटर है। So
So, wind energy utilization, according to estimations from meteorologists, about 1% of incoming solar radiation is converted into wind energy. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. While the 1% of daily wind energy input is nearly equivalent to the present daily energy consumption. सूरज की रोशनी का 1% विंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है और विंड एनर्जी, विंड में जितनी एनर्जी है उसका 1% हमारी एनर्जी कंजम्पशन के लिए काफी है. Now, how we convert these wind energies into electricity? We need to rotate the shaft, and that shaft must be carrying power. The shaft carrying power must rotate the generator so that electricity may be produced. So windmills may be vertical or horizontal. Vertical is their axis around which they can rotate. Same is true for horizontal axis. So इसका axis जिसका horizontal है, जिसके around उसने spin करना है, ठीक है, तो ये horizontal axis है. Vertical axis जिसके around उसने spin करना है. Now windmill is a mill that converts the energy of wind into rotational energy by means of vanes called sails or blades. Majority of modern windmills take the form of wind turbines used to generate electricity or wind pumps used to pump water, either for land drainage or to extract groundwater. I have mentioned a number of times about Holland. The reason to discuss Holland is that is a wonderful country which is below sea level. They have managed to fight with the sea and to extract land from sea. What they have done is they have made a dam or a wall with the sea so that the seawater may not come into their lands. What else they do is, since their level of the ground is lower than the sea level, and water will be coming here from the land, from the underground water will be coming there. So they have to remove that water for irrigation and for living purposes. So what they used to do is they have made a number of canals. This is their land. This is one canal level. The other canal. Here is sea level. So they will remove water from this portion, which is because of extremely high water bed level, which rises up every day. So they remove this water and throw it in this canal. So from this canal, they put it here in the upper canal. From upper canal, they lift the water in further upper canal and throw it in the sea, right? So what they used to do is, when windmills were invented, they used the windmills for removing that water. They used to run the pumps, water pumps. So whenever you see Holland, you will see the symbols of windmills with them. So that is what they used to do with these pumps, with these windmills. So they knew windmill very well, and nowadays they are producing electricity from windmills as well. So this is their history. This is the history of windmills. This is the ancient Persia, right? Iran, Islam से पहले का, गालिबन Islam से पहले का, ठीक है? Vertical axis windmills they used to use. Earlier, there was no source of power such as motor or engines. These are just more than a century old, more than 100 years old, right? So earlier they didn't have power source. So what these people did, they made vertical axis turbines with the sails, and they could
rotate this shaft, and they could fit the grinding wheel there to rotate it so that they could grind the corns and wheat with these wind turbines. So in the wind in the Middle Ages, post mill introduced Northern Europe. Horizontal axis windmills, sails connected to the horizontal shaft on the tower, encasing gears and axles for translating horizontal into rotational motion. So this is how they use this kind of turbines you will see in Holland, and they used it for pumping water. Wind in the 19th century, a wind rose horizontal axis water pumping and windmills formed throughout the rural America. So in 1888, Charles Brush builds first large size wind electricity generation turbine. So this was the first electricity generating turbine. Windrose configuration, 12 watt kilowatts generator and 17-meter diameter. Then Levi's Electric Company of New York sells generator to retrofit onto the existing windmills. In 1920s and 50s, propeller type 2 to 3 blade horizontal axis wind electricity conversion systems were developed. And 40s to 60s, rural electrification in US and Europe lead to decline in WECS use. WECS is wind electricity conversion system. So nowadays, this is one of the very promising renewable energy resource. We produce a lot of energy through tidal power, through big dams, wherever these resources are available, or solar energy or wind energy. So wind is probably second or third most promising technology at the moment for extracting energy. But you should have winds in your area for running these windmills. The other thing is that wind at ground level will be less. As you rise up in the atmosphere towards skies, the wind speed will start increasing. That is due to friction. जमीन पे बहुत सारी रुकावटें हैं, घर आ जाते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर है, दरख्त हैं जो इसको रोक रहे होते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जमीन के लेवल के ऊपर जो है, मतलब एक चीज उनसी है, वहां पे उसकी स्पीड बिल्कुल कम होगी। जैसे जैसे उससे ऊपर जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, अगर आपको उसका फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कर्व याद है, ठीक है, विस्कोसिटी के लिए जो हमने पढ़ा था। अच्छा, अब नाउ जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे विंड की स्पीड मिलेगी। A very simple observation is about clouds. आसमान पे आपको क्लाउड्स चलते नजर आते हैं, जबकि दरख्त और सब कुछ स्टिल होता है, ठीक है। तो this also shows good winds above high in the skies or in the atmosphere, right? So for extracting energy, you have to optimize the wind turbine size, windmill size, right? So the most promising technologies for energy extraction are horizontal axis windmills. These are huge in size. You increase the diameter of the windmill, you will get more power. Earlier, they tried with different structures to support the windmill, right? But nowadays they have gone to unipolar design. अब एक ही पोल होता है, ठीक है, जो जैसा कि इसमें नजर आ रहा है, इस तरह का डिजाइन है। अगरचे ये एक टावर है, यूनिपोल टावर है, ठीक है, इसमें स्टेयर्स भी बनी होती हैं ताकि आप ऊपर तक जा सकें। This is a big structure. This is called nacelle. These are blades, and this structure is nacelle. The whole energy generation system is there. There are gears, brakes, and generators. आप इस टावर के ऊपर इस टरबाइन को
विंड मिल को आप इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो विंड के हिसाब से, क्योंकि विंड का कोई पता नहीं होता कि ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये जहां पे जिस तरह से भी प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा ये उसके मुताबिक चलना शुरू होगा। Another interesting question to you is, which is the best source, which is the continuous source of energy among all the energy resources? कौन बता सकता है? तक ਸਮੀਣੇ ਨੇ ਵਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖਰੇਦ ਭੁਗਤੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਿੱਦਿਆ ਸਮੀਣੇ ਵਾਨੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ कौन बता सकता है जी? हमने भी रिसोर्सेज पढ़े हैं, सोलर, हाइडल, जियोथर्मल, टाइडल, वेव्स, बायोमास। ठीक है, इनमें से कौन सा कंटिन्यूस सोर्स है, कौन सा नॉन कंटिन्यूस है? Hamza, are you there? फहीम, ना हमजा है ना फहीम है। जिशान, सोलर कंटिन्यूस है। सोलर कंटिन्यूस है। और सोलर कंटिन्यूस है और हाइडल कंटिन्यूस है। जरा हर एक को काउंट करके बता दें इनमें से कौन कौन सा किस तरह से कंटिन्यूस है, किस तरह से नॉन कंटिन्यूस है। सोलर एनर्जी कंटिन्यूस है क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे पास उसका सोर्स है। मतलब इन केस वन साइड पे अगर है सोलर एनर्जी है उधर नहीं है तो दूसरी तरफ है, लेकिन ओवरऑल अर्थ पे उसका कंटिन्यूस ही है, कह सकते हैं इस तरह से। जी कोई और बताना चाहे? सर सोलर कंटिन्यूस नहीं है, इस सनी डे पे है। अगर बैटरीज लगाए जाए तो फिर हम कंटिन्यूस कह सकते हैं। और कंटिन्यूस तो ना हुआ ना, कंटिन्यूस तो ना हुआ ना। जब सनी डे आपको पे जब आपको कुछ घंटों के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ के लिए नहीं करता 24 आवर्स में भी। ठीक है, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। आपका आपकी डिपेंड करता है कि आपके जनरेटर्स कितनी देर के लिए चल रहे हैं। जब कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो इसका मतलब है जनरेटर क्या कंटिन्यूअसली चल रहे हैं 24 आवर्स के नहीं। अब सोलर इज नॉट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद आगे और इसके बाद हाइडल है, लेकिन डिपेंड करता है सीजन पे। हाइडल है, हाइडल सीजन पे लेकिन ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। और वेव्स भी कंटिन्यूअस है, वेव्स भी कंटिन्यूअस है, वेव एनर्जी वो भी कंटिन्यूअस और है। बायोमास और बायोमास इज आल्सो कंटिन्यूअस। बायो न्यूक्लियर भी सर। न्यूक्लियर है, हम रिन्यूएबल नहीं है उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बायोमास इज कंटिन्यूअस क्योंकि इसमें हम जनरेटर्स को जब हमारे पास फ्यूल अवेलेबल है तो हम उसको रन कर सकते हैं। यस सर। तो फ्यूल हम अगरचे वो सीजनली हम जनरेट करते हैं प्लांट्स के थ्रू, लेकिन वो हम इतना जनरेट कर लेते हैं कि हमारे वो कंटिन्यूसली वो चलते रहे। सो व्हाट अबाउट विंड? डिपेंड अपॉन रेन पे डिपेंड करता है सर। ये कहाँ पे?
विंड इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। सॉय इसके कि बिल्कुल ग्लोबल विंड्स के एरियाज हों जहाँ पे कंटिन्यूसली हवा चल रही है, वहां पे इसकी कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी कम होगी। सो विंड इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। टाइडल एनर्जी, it is not continuous but it is completely predictable. We know when we will be getting the tidal energy, कि हाई टाइड्स के आने का टाइम हमें पता है, ठीक है। तो हम उसके मुताबिक लो टाइड का, और हम उसके मुताबिक जो 2-3 घंटे हैं उनमें हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं दिन में 2-4 दफा, ठीक है। सो जब टाइड आ रही है, जब टाइड जा रही है, ठीक है, और दोबारा से आ रही है और जा रही है, तो हम उसमें एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ घंटे ऐसे भी होंगे जब हम एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो हमें बैकअप सिस्टम उसमें चाहिए होगा। बैकअप सिस्टम इसमें हमें विंड में भी चाहिए होगा, ठीक है। विंड में एक और इशू ये है कि इसकी स्पीड कभी हमें मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, ठीक है। तो हमने इसमें विंड को, ये टरबाइंस को तो हमें रनिंग में चाहिए, रन करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है हवा के ऊपर और रीजनल कंडीशंस के ऊपर। सो इट्स डिजाइन इज आल्सो to be done in such a way you have to select the turbine, suitable turbine to optimize it, ठीक है। वैसे ये देखा गया है कि if you increase the height you will get more power, if you increase the diameter of the turbine you will get more power। अब diameter पर enhance करने से क्या होगा, basically what you are doing is you are extracting the kinetic energy present in the winds. When you increase the diameter, its kinetic, the more air will be in contact with the blades, transferring its kinetic energy and moving away. इसमें होता यह है कि हवा आ रही है, ठीक है, ये इसने टरबाइन को रोटेट करवाया, अपनी एनर्जी उसको दे दी है, ठीक है। तो अब जो आउटगोइंग हवा होगी जो टरबाइन से गुजर गई है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। उसने अब कितनी एनर्जी इसको दी है टरबाइन को, जो इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लो, जो इनकमिंग थी, जो आउटगोइंग थी। तो बीच की जो सी है वो इसने विंड मिल को दे दिया, ठीक है। सो और हमने ये भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे हमें हवा की स्पीड ज्यादा मिलेगी, हमारी हाइट इंक्रीज होने से हवा की स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, और ज्यादा हवा मिलेगी। तो हमें हवा की स्पीड से गर्ज है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ द विंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो विद रोटर डायमीटर 10 मीटर एंड टावर हाइट 18 मीटर, so it is 25 kilowatt wind turbine. Rotor diameter 24.4 and tower height is 30 meter, so you can get 250 kilowatt. अब देखो रोटर डायमीटर जस्ट डबल हुआ है, टावर हाइट हमने डबल से थोड़ी सी कम की है, ठीक है। रोटर डायमीटर डबल नहीं बल्कि 244 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो आपकी पावर जो सी है ये 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है। So for 50 meter height and 47 rotor diameter, you can generate 660 kilowatts. So एंड में अगर हम देखें तो 6000 किलोवाट हम जनरेट कर सकते हैं 126 मीटर के डायमीटर से और 131 मीटर हाइट से, ठीक है। 5000 है 126 मीटर डायमीटर और 87 मीटर हाइट। इसमें देखो जस्ट इसमें इन दोनों में हाइट इंक्रीज की है, हाइट इंक्रीज करने से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। लेकिन आपको जब आपने विंड टरबाइन सेलेक्ट करनी है तो सिर्फ ये डायमीटर
इंक्रीज जो है ये उस चीज की गारंटी नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि बड़ी टर्बाइंस का मतलब ये है, टर्बाइन शुड बी वेरी लाइट वेट, इट्स ब्लेड्स शुड बी वेरी लाइट वेट, ऑल द रोटेटिंग कंपोनेंट्स शुड बी एक्सट्रीमली लाइट वेट, क्योंकि आपने इनको रोटेट करवाना है। अगर ये हैवी होंगे तो ये रोटेट नहीं होंगे, इनर्शिया जो है इनका बढ़ जाएगा और वो रेजिस्ट कर रहा होगा। और एज एन इंजीनियर यू शुड नो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट दैट हैज टू मूव, it should be extremely lightweight. You have to make it lighter so that you can quickly increase its speed, run it on high speed and quickly break it, मतलब आप उसको रोक सकें, ठीक है। So the rotors of 126 meter diameter, it's huge. That means 63 meter is radius. 63 meter means 180 feet, more than 180 feet. So it's huge size. तो आप इसके लिए इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साइज के ब्लेड्स को आपने उधर साइड पे पहुंचाना है, ठीक है, एक सी ट्रक के ऊपर रख के आ रहे होंगे। सो और विंड मिल्स के लिए जो मटेरियल्स हैं, दिस शुड बी वेरी लाइट. So nowadays carbon fiber blades are made. So all the mechanism of energy production is residing in this body. This is called nacelle. So this is just to recall the Bernoulli's equation and momentum of a fluid, right? So there are different types of turbines, vertical axis and horizontal axis. Vertical axis turbines can accept wind from any direction without adjustment. Generators are on the ground. Generators need to have a gearbox, and vertical axis turbines types are cup anemometer, Simonius rotor, Darius rotor, Musgrove rotor, Evans rotor, and horizontal axis machine must yaw. इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही टर्न कर, ये खुद ही रिवॉल्व कर रही होगी, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको विंड की डायरेक्शन के मुताबिक उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये सारी जो हमने टर्बाइंस देखी हैं, ये वाली, जैसे अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो आपको इसके सामने करना होगा, अगर इधर है तो इसको रोटेट करवा के इधर लाना होगा, ठीक है। So vertical axis turbines are cup anemometer. This is the simplest form of vertical turbines. You might have seen them on our trucks. One of the very interesting location is on trucks. I have seen them. Normally they are found on the meteorological departments for measuring the speed of wind. इसमें है क्या, ये कप है, सर्कुलर शेप है कंप्लीटली, ठीक है, हाफ हेमिस्फीयर, और एक इसकी ये डायरेक्शन है और एक ये दूसरी है। सो एयर अगर आएगी तो इस कप के अंदर और ड्रैग जनरेट होगा और उससे ये इसको रोटेट करवा देगी। अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसको तो ये रोटेट करवा देगी और इसके स्फेरिकल शेप के अराउंड से ये मूव कर जाएगी। सो नेट जो सा इसके ऊपर टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, और इस वजह से ये इस तरह से और इस तरह से इस पर टॉर्क लगेगा और ये इस तरह से रोटेट कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दीज कप्स, व्हेन दे मूव दीज कप्स विल टेक प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेट करती जाएगी। So this is used to measure the speed of wind. The shape of the cup produces nearly linear relationship with rotational frequency and wind speed. So measurement of the number of rotations per time period correlate to the average wind speed over that period.
The device is a standard anemometer for meteorological data. ये इवन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के ऊपर भी लगी होती है, स्पीड ही को मेजर करने के लिए. सेवोनियस रोटर, इसमें ये तो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, बट दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज वेरी सिंपल. इसमें ये एक हाफ सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है. एक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिस तरह कप के राउंड उसकी रोटेशन होगी, इसी तरह इधर से आने वाली फोर्स जो सी है, जो एयर है, वो इसके ऊपर ड्रैग लगाएगी, जबकि इधर से ये मूव कर जाएगी इसके राउंड. सो जिस भी डायरेक्शन में हवा चलेगी ये इसको रोटेट करवा देगी. सो देयर इज a complicated motion of the wind through and around two curved sheet aerofoils. The driving force is principally drag. The construction is simple and inexpensive. Large solidity produces large starting torque. So Savinius rotors are mostly used for water pumping. So इसमें आप देख सकते हो ये Savinius rotors जो से Savinius rotors, ठीक है. So the next is Darius. This is based on aerofoil shape, ठीक है. इसमें बेशक आपका ये वाला हो, इस तरह से इसकी शेप है, या कुछ और है, ठीक है. जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो कुछ इस तरह से बना होगा. सो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसकी शेप है क्रॉस सेक्शन में. सो दिस इज एरोफाइल शेप. So what happens on an aerofoil shape is एरोफाइल शेप में क्या होता है कि मुझे लगता है इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा, ठीक है. इस तरह से शेप है, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से तो इधर से ये एयर ऐसे गुजर जाएगी, यहाँ से एयर आएगी, ये ऐसे गुजर जाएगी, और यहाँ से ऐसे, ठीक है. So there will be high pressure region on lower side and low pressure region on higher side. So this is the shape of wing as well, right? So जहाजों के जो उनसे wings होते हैं वो इसी तरह से बने होते हैं, और इसमें जब एयर से ये पास करते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ लो प्रेशर जनरेट होता है, नीचे की तरफ हाई प्रेशर जनरेट होता है. सो एक सर्टेन हाइट के ऊपर जब ट्रेवल कर रहा होगा तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो एक इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, ये जहाज के वेट के बराबर होगी, तो जहाज एक हाइट के ऊपर स्टेबल रहेगा, ठीक है. अदरवाइज अगर लो प्रेशर आपको फर्दर अगर कम कर देते हो, जो कि इसके ये इसके मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं आ रहा, ये लगा के वेन्स लगा के इसको करते हो, ठीक है, तो इससे नीचे का हाई प्रेशर जो है वो और इनहांस हो जाएगा और जहाज ऐसे अपनी ऊपर की तरफ चला जाएगा. अगर इनको उल्टा कर दोगे तो अब ऊपर की तरफ प्रेशर बढ़ाओगे, नीचे की तरफ कम करोगे, तो जहाज नीचे की तरफ आ जाएगा. सो इन शॉर्ट व्हाट we do is we design aerofoil shapes to create pressure difference. So there are two types of forces on an aerofoil shape. One is drag and other is lift. So we are interested in
in aeroplane design, we are interested in lift. When we are talking about cars, we are not much interested in lift, but we are interested in reducing drag, right? But in lift, yes, because in cars we have to create negative lift. ठीक है, उसमें हम ये चाहते हैं कि फोर्स नीचे की तरफ लगे ताकि गाड़ी की ग्रिप जो उनसे स्पीड के साथ बढ़े। And that is a different discussion. Let's come to the lecture. So what we do is we use an aerofoil shape, and aerofoil shape creates a difference on pressure on the sides. So there is a net force in this direction, in this, when wind is rotating coming from here, and in this direction. So it will start it rotating. ठीक है, इसमें हम एक नेट फोर्स जनरेट करवा लेते हैं जिससे ये रोटेट करना शुरू कर देगी. So this is the basic principle of the movement of wind blades. ठीक है, कि ब्लेड्स का डिजाइन हमने इस तरह से किया हुआ है कि उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगती है जो फ्लूइड मैकेनिक्स की वजह से, ठीक है, जब एयर उसे पास करती है तो उसकी वजह से उसमें वो उसको रोटेशन दे जाएगी. This is based on the same principles at which are used for wing design of the aeroplanes. So normally the engineers, aviation engineers, or the engineers who can who have very good experience in aerodynamics, they are designing these wind turbine blades. So next is Musgrove rotor. The blades of this form of rotor are vertical for normal power generation, but tip or turn about horizontal point for control or shutdown. There are several variations which are designed to have advantage of fail-safe shutdown in strong winds. Evans rotors, the vertical blade change pitch above a vertical axis for the control and fail-safe shutdown. So vertical axis turbines have several disadvantages. For Darius, Musgrove, and Evans rotor, the driving force are lift with maximum turbine torque occurring when blade moves twice per rotation across the wind. Uses for electricity generation. The rotor is not usually self-starting, so that is the issue. Therefore, movement may be initiated with electrical induction generator used as motor. So अपने generator जो लगाया हुआ है उसको as motor के तौर पर use करो, उससे इसको एक दफा motion आपको start करवाना पड़ेगा. A major disadvantage of vertical axis machine is to eliminate gravity-induced stresses, strain cycles, which occur every rotation in the blade of horizontal axis turbine. So in principle, vertical axis turbines may be very large. For small machines, gearing generator may be directly coupled to the vertical main shaft at ground level. However, for larger vertical axis machine, high torque at the main shaft requires to be short, so the generators are not at ground. So अगर इसका shaft का size बहुत बड़ा है और बड़ी सी आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो सा है बड़ी टर्बाइंस के साथ ग्राउंड पे नहीं ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि शाफ्ट का साइज छोटे से छोटा हो. और अगर छोटे लेवल की हैं तो उस पे आप ग्राउंड लेवल पे रख सकते हो और उसको generators core gearing mechanism, ठीक है. So there are certain stresses generated for which we do not use vertical axis turbines in large number, right? So what we use is horizontal axis wind turbine, which is this. इसमें भी blades हैं. इसके अगर हम components देखें तो ये blades हो गए, ठीक है, और रोटर ये इसका यहाँ पे हब मैकेनिज्म होगा. इसकी आप पिच चेंज कर सकते हैं. पिच मीन्स के ब्लेड को हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उसका जो है
ड्रैग को या उसके जो सी नेट फोर्स है एरोडायनामिक फोर्स उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकें डिपेंडिंग ऑन विंड स्पीड एंड एनर्जी। उसके बाद इसमें ये याव कंट्रोल मैकेनिज्म, याव कंट्रोल मैकेनिज्म गियर्स एंड मोटर हेयर, ठीक है, जो कि इसको इस टावर के ऊपर इस तरह से मूव करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ wind. So this is yaw control. Okay, so pitch control, which is about the direction of the blades, ठीक है, orientation और direction of the blades कि blades की pitch जो सी है मतलब आप उसको इस तरह से adjust कर सकते हैं। So next is the bearing and hub and bearing and then this shaft and then there is a gear mechanism and then generator. There is also a brake here. This one is brake. अगर विंड बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपको एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है, अगर कोई तूफान आ गया है तो उसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी जिससे ये सारे की सारी मशीनरी आपकी तबाह हो सकती है। तो उसके लिए दो तीन चीजें हैं, इसको ब्रेक लगा दो, तो इस तरह से एडजस्ट करो कि स्टॉल की कंडीशन जनरेट हो जाए जिसमें ब्लेड रुक जाते हैं, वो एरोडायनामिकली कंडीशन जो है वो जनरेट की जाती है, ठीक है, कि इसमें ये ब्लेड रुक जाए और ये रुक जाए, ठीक है, क्योंकि आपने इसको एक्सट्रीम वेदर में या एक्सट्रीम कंडीशंस में सेव भी करना है। ये इसके ऊपर एनेमोमीटर भी लगा हुआ है जो विंड की स्पीड को मेजर कर रहा है, ठीक है, और बाकी इसमें डिफरेंट सेंसर्स हैं। सो इट हैज ए स्ट्रक्चर, wind turbine has a structure which is this pole, there are stairs normally here, this is nacelle, this is a huge structure, ये इतना बड़ा है कि इस पे जब बड़ी विंड टर्बाइन्स हैं इनमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। ब्लेड्स एरोफॉइल शेप विद वेरिंग ज्योमेट्री, वर्किंग प्रिंसिपल इज मैक्सिमाइज लिफ्ट मिनिमाइज ड्रैग, लिफ्ट causes the blades turn, drag causes the passing air to get slow down, aerofoil angle can be adjusted as per requirement, gear mechanism to increase RPM of the generator starter, power generator, step up transformer. So lift and drags are affected by aerofoil geometry, wind speed, angle of blade relative to the air. So basic principle are the calculations, power calculations of wind energy are its kinetic energy. You have to measure the kinetic energy of the wind. So kinetic energy is 1/2 mv square. Power is the rate of doing work or energy consumed, right? So that is 1/2 m dot v. Now m dot जो कि velocity है mass के move करने की, so m dot is dm over dt, right? So dm और mass क्या होता है, mass is volume into density, right? So volume is area, frontal area into the length, ठीक है, और अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। So rho AV is m dm over dt. So the equation of power becomes power, wind power, right? ये wind की power की बात करें, wind power is 1/2 rho AV cube, ठीक है। अब ये जब इसमें से गुजरेगी ब्लेड्स में से, ठीक है, टरबाइन में से, तो इसकी स्पीड इनकमिंग एयर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी इसमें से पास करने के बाद। सो आउटगोइंग एयर velocity is less than incoming air, but it is not possible to extract full energy and make V out zero, ठीक है। एरिया जो सा था वो रोटर का एरिया था टोटल, जो उसका डायमीटर है जिसकी हमने डिस्कशन की पीछे। नाउ एयर डेंसिटी डिपेंड्स वीकली ऑन हाइट एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, रो जो सी है, ठीक है। Wind speed generally increases with height. Wind speed is affected by local topography, varies greatly with time.
A typical value of rho is 12 kilogram per meter cube at sea level. Useful power can be harnessed in moderate winds when U is 10 meter per second, so power is 600 megawatts, 600 watt per meter square. In gale force conditions, जब तूफान आते हैं, V is 25 meter per second, so power is 10,000 watts per meter cube per meter square. So the cubic relationship of power and wind speed is strongly nonlinear. So that should be nonlinear. ठीक है? तो जो सी power है वो is proportional to V cube. So this is the relationship of power and diameter and period. So increasing diameter, we increase the power. Now, rated power is maximum power that wind turbines are designed to generate. Okay? Rated speed, wind at which the rated power, we achieve rated power. Okay? So wind at which it is achieved is rated wind speed. Okay? Rated power जिस पे achieve कर रहे हैं. So this is chosen to fit the local site wind regime and is often 1.5 times the site mean wind speed. ठीक है, जो रेटेड स्पीड है वो जो एवरेज स्पीड से 1.5 टाइम्स ज्यादा होती है. ठीक है. The Beaufort scale, a wind speed classification, gives description of the effect of the wind. It was initially designed for sailors and described the sea state, but has been modified to include wind effect on land. So V out is less than V in energy consumed by turbine. ये तो हमने इसकी पावर निकाली है विंड की. ठीक है, ये सारा कुछ है विंड की काइनेटिक एनर्जी और विंड की पावर जो उधर से पास कर रही है. ठीक है, तो अब हमने एनर्जी कितनी एक्सट्रैक्ट की है, दैट इज 1/2 mv in minus 1/2 mv out. ठीक है, so this is the energy which is consumed by wind turbine. ठीक है, और which is converted into which is consumed by wind turbine, और इसमें फिर frictional losses भी होंगे. ठीक है, so वो इससे भी थोड़ी सी कम होगी. All the energy converted will be converted into electricity if V out is 0. That is not possible. Therefore, the maximum turbine maximum efficiency is limited to 59. So normally ये 30-35 की efficiency पे काम कर रही होती है. ये 59 से ज्यादा नहीं हो सकती. क्यों? ये पॉसिबल नहीं है कि विंड टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद आगे रुक जाए. उसकी स्पीड कम हो जाएगी लेकिन वो रुकेगी नहीं. So Betts law is that maximum turbine efficiency is 59%. So windmill power is 1/2 rho AVQ, or power is proportional to diameter square. So wind power, basically turbine power, is 1/2 rho AVQ CP. Power coefficient, ठीक है, CP is the ratio of power extracted by the turbine to the total contained in the wind resources. CP is PT over PW, power of turbine over power of wind. ठीक है, आपने power turbine से कितनी generate किया और wind में कितनी थी. So by Betts law, CP is 16 over 27, which is 59%. 59% efficiency is best a conventional wind turbine can do in extracting wind power from the wind. So normally wind की power जो सी है 1/2 rho AVQ, और उसके साथ जो सी wind mill की जो सी efficiency है that will be 30% or 40%. ठीक है, तो वो उसके फैक्टर के साथ 0.3 या 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टरबाइन की एफिशिएंसी मिलेगी, टरबाइन की पावर मिलेगी. So this is how you design it, right? So the fraction of the year turbine generator is operating at rated peak capacity power, capacity factor. So capacity factor is average output over peak output
which is something like 30%. Okay. CF is based on both characteristics of turbine and side characteristics. Typically 0.3 or above for a good site. अगर आपको 30% मिलती है तो that is good. ठीक है. So turbine blades जो उनसे हैं, जो इसमें भी यूज हुए हैं, they are aerofoil shaped, something like this. So faster air, slower air on bottom side, faster air on higher side, right? On this side. तो ये जो हम कन्वेंशनली यूज कर रहे होते हैं एरोफाइल को, वो हमने तो इस तरह से दिखाया हुआ है, लेकिन एरोफाइल शेप कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसके नतीजे में इधर लिफ्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। ब्लेड जब इस शेप में है तो उस वक्त इस तरह से होगा, तो इस पर लिफ्ट जनरेट होगी, ऐसे ट्रेवल कर जाएगा इस तरह से। और इस तरफ वाला जो सा है ये इसके अपोजिट होगा, तो उसमें लिफ्ट जो से नीचे की तरफ जनरेट हो रही है, सो एक कपल होगा, वो इस तरह से रोटेट करवा देगा, ठीक है जी। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ द rotor blade. You can see that its cross section is changing continuously. Higher pitch near root, lower pitch near tip. ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस पोर्शन में जो फोर्स जनरेट होगी, नेट फोर्स, विच इज जो हमने उधर जिक्र किया कि वो लिफ्ट है, ठीक है, वो इस पॉइंट के अराउंड या इस एक्सिस के अराउंड एक टॉर्क जनरेट करेगी, और जो यहाँ पे है वो भी एक टॉर्क जनरेट करेगी, ठीक है, और इधर वाली भी। तो टॉर्क इज मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। अब हम ये चाहते हैं कि टॉर्क थ्रू आउट सेम रहे, ये वाला पोर्शन जो है ये भी इतना ही टॉर्क जनरेट करे जितना ये कर रहा है, और जितना टॉर्क ये जनरेट कर रहा है उतना ही ये वाला पोर्शन भी जनरेट करे। अगर हम सेम प्रोफाइल रखेंगे तो यहाँ पे टॉर्क बहुत बढ़ जाएगा और इसमें स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे और ये टूट जाएगा। सो इट इज क्रिटिकल टू डिजाइन द विंड ब्लेड, ठीक है, कि हमने उसको बैलेंस करना है। ये बात सबको समझ आ गई है? ज़ीशान? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे टॉर्क चाहते हैं, टॉर्क कांस्टेंट हो। अब उसके लिए हमें यहाँ पे फोर्स स्पीड जो है इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी लिफ्ट की, और यहाँ पे हम कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्सेस एक्ट ऑन द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। सो यहाँ पे भी टॉर्क जनरेट हो रहा है, इधर भी जनरेट हो रहा है, जो कि सेम है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे ज्यादा जनरेट करवाएंगे, यहाँ पे कम टॉर्क होगा, तो ये इसमें ये क्रैक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। नो पिच इज इट्स एडजस्टमेंट, ठीक है, इसको हम कितना ऐसे या ऐसे कर रहे हैं, सॉरी, कि इसको हम कितना, इस ब्लेड को इस तरह या इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। So these are the different blade shapes at different distances. Apart from twist, wind turbine blades have similar requirements to aeroplane wings, so their cross sections are usually based on a similar family of shapes, ठीक है। इसकी shapes जो हैं ये aerofoil से मिलती जुलती हैं। In general, the best lift drag characteristics are obtained by an aerofoil that is fairly thin. Its thickness might be only 10 to 15% of its chord length across the blade in the direction of the wind flow. So, wind turbine blade design factors: aerodynamic, size of turbines, tower height, turbine size, and tower height. So longer the turbine blades, therefore the greater diameter of the rotor,
the more energy the turbine can capture from wind and the greater the electricity generating capacity. Doubling the rotor diameter produces a four-fold increase in energy output. In some cases, however, in a lower wind speed area, a smaller diameter rotor can end up producing more energy than larger rotor because with smaller setup it takes less wind to spin the smaller generator. So the turbine can be running at full capacity almost all the time. So इसको optimize करना important है, ठीक है, कि आप किस एरिया के लिए क्या सेलेक्ट कर रहे हो. अगर विंड्स ही बड़ी कम चलती हैं, स्लो स्पीड पे हैं, तो उधर आपको बड़ी विंड मिल लगाओगे तो उसका इनर्शियल मोमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है. ये मोमेंटम जो है वो उसका इनर्शियल रेजिस्टेंस जो सी है, ठीक है, वो उसकी ज़्यादा होगी, तो उसे हम पावर हार्नेस नहीं कर पाएंगे. तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम, ठीक है. So tower height is a major factor in production capacity as well. The higher the turbine, the more energy it can capture because wind speed increases with elevation increase. Ground friction and ground level objects interrupt the flow of wind. Scientists estimate 12% increase in wind speed with each doubling of elevation. So double करते जाएं तो कितनी 12%. This is important. That may be a question of MCQs for you. So calculating power, the wind turbine can be calculated by wind speed at turbine side, the turbine power rating. Most large turbines produce maximum power at wind speeds around 15 meters per second. Considering steady wind speeds, its diameter of the rotor that determines how much energy turbine can generate. As the rotor diameter increases, the height of tower increases as well, which means more access to faster winds. अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट वीक में अब आपका क्विज होगा, बल्कि आपके क्विजेज होंगे जो लास्ट वीक में भी नहीं हो सके थे, जो इस वीक में भी यूनिवर्सिटी ने हमें रोक दिया था, ठीक है, वो सब कुछ हमें अब करने हैं. तो a lot of pressure, ठीक है, on you as well, मेरे पे भी है, क्योंकि मुझे ये क्विजेज सारे तैयार करने हैं, ठीक है, और आपने यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोस क्विजेस. डेट्स आपको अनाउंस कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इट शुड बी इन द लेक्चर. सर आपने 4 क्विज़ेस कंडक्ट करने हैं, टेस्ट 4, ठीक है. सर ये सपोजेबल है 2 नेक्स्ट वीक में ले लें, 2 उससे अगले वीक में सर. अरे वीक ही पता नहीं, अगला वीक पता नहीं, आपको मुश्किल से मिलेगा. कोर्स हमारा खत्म है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है. इसके बाद ये आज खत्म हो गया, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद हमारा रह जाएगा, दूसरे सेक्शन का थोड़ा सा रह गया था. एक हमें और एनर्जी एफिशिएंसी और स्टोरेज के हवाले से डिस्कस करना है, और एक का टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो अब आप सर एक और अपने प्रोजेक्ट्स जो उनसे थे फाइनल ईयर ज़हन में रखना, उनकी भी प्रेजेंटेशन है, उनको नहीं भूलना. उनमें वर्किंग जो है वो मुनासिब लेवल की, जो आपके टीचर, जो आपके सुपरवाइजर्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो जरूर कर लेना, ठीक है. ये ना हो कि आप एंड में कहो जी कि हमें टाइम नहीं मिला था, हमें पता नहीं था, और ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ये भी इसके साथ ही होना है, और इसके लिए अचानक अनाउंसमेंट आएगी. यहाँ पे होता यही है, अचानक अनाउंसमेंट आती है, ठीक है. तो और विद इन फ्यू डेज आपको प्रिपेयर करना होगा. सो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स. अभी तक मेरे में नहीं है कि हमारे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 10th से हैं शायद, जो सुना है. सर ऑनलाइन होंगे, ये नहीं पता अभी. सो आप तैयार रहें, अपनी तैयारी रखें, ठीक है. अब आपको केयर करनी है अपनी स्टडीज़ के हवाले से, आपको वक्त नहीं ज़ाया करना. तो मैं आपको यही कह सकता हूँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर एग्जाम्स. ये आपका फाइनल ईयर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू ऑल. इसमें केयर कर लेना, ठीक है. सो अब इसमें कंट्रोल्स कौन कौन से हैं,
safety controls. There are a number of safety systems that can turn off the turbine if फिर में सर वो आपसे एक चीज कंफर्म करनी जी थी जी सर जी, जो हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट जमा करवाना है इसका जो है ना वो ग्रुप्स का ऊपर शो करता है कि यू आर नॉट इन अ ग्रुप, यानी प्रोजेक्ट की सबमिशन के ऊपर जब जाएं तो वो कहते हैं कि आपका भी ग्रुप जो है ना किसी ग्रुप में शामिल नहीं है। अच्छा अच्छा, उसको भी देखते हैं। आप ऐसा करें, आप मुझे अपने ग्रुप्स को बता दें, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बेशक अपने ग्रुप्स बना के भेज दें। और देखो ढंग के जी प्रोजेक्ट राइट करना, सर। ये ना हो कि एक ही जोन से वो सारे के सारे जोन से हैं वो एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर उसकी डिस्कशन की जरूरत है तो हम कर लेते हैं, वो काफी मार्क्स जो उनसे वो कैरी करेगा वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें आपकी अच्छी तैयारी और अच्छा सब कुछ आप होना चाहिए। सर ये जो आप फाइनल सर ये आप जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सर, इसके कुछ मार्क्स भी होंगे बीच में या ग्रेडिंग के वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो यूनिवर्सिटीज के रूल्स हैं वो ये कहते हैं, यूनिवर्सिटी के रूल्स, और एचईसी भी हमें ये कहती है, पीईसी भी ये कहती है कि 7th सेमेस्टर की फुल एवेल्युएशन सेपरेट एवेल्युएशन होनी चाहिए और 8th की सेपरेट एवेल्युएशन। 7th सेमेस्टर वर्क की और 8th सेमेस्टर वर्क की सेपरेट एवेल्युएशन होगी। तो 7th सेमेस्टर के एंड तक आपका हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉर्ट ऑफ हाफ जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, ठीक है। रूल बुक हमें यही कहती है। राइट सर। अच्छा जी, अब देर आर नंबर ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स दैट कैन टर्न ऑफ टरबाइन व्हेन विंड स्पीड्स थ्रेटन द स्ट्रक्चर। वाइब्रेशन सेंसर्स, वाइब्रेशन उस वक्त होगी जब आपका बड़ा वो जो है ना स्पीड इंक्रीज हुई है और कुछ एक्स्ट्रा सी कंडीशन जो उनसे वो क्रिएट हुई है, ठीक है। They are used in some turbines that basically consist of a metal bar attached to a chain poised on a tiny pedestal. If the turbine starts vibrating above a certain threshold, ball falls off the pedestal, pulling on the chain and triggering a shutdown. So वाइब्रेशन देखने का या अर्थ पे जल्जला देखने का भी एक बड़ा आसान सा तरीका यही है कि आप एक सस्पेंड कर दो बॉल को। सो दैट इज व्हाट दे डू, ठीक है। वो ज्यादा वाइब्रेशन हो तो वो गिर जाएगा और चेन जो है वो खिंच जाएगी और ब्रेक लग जाएगी, शट डाउन हो जाएगा। Braking system is triggered by the above threshold wind speeds. These setups use power control system that essentially hits the brake when wind speed get too high and then release the brakes when the wind speed is back below 45 mile per hour. Modern large turbine designs use several different types of braking system. ये उसी तरह से ब्रेक है जिस तरह गाड़ी में ब्रेक काम कर रही होती है, ठीक है। What else they do is there is also a pitch control. The turbine electronic controller monitors the turbine's power output at wind speeds over 45 miles per hour. The power output will be too high, at which point the controller tells the blade to alter their pitch so that they become unaligned with the wind. This slows the blade rotation. The pitch controlled system required the blade's mounting angle to be adjustable, ठीक है। पैसिव स्टॉल, ये भी ब्लेड्स के साथ ही रिलेटेड है। The blades are mounted to the rotor at a fixed angle that are not designed so that the twist in the blade themselves will apply the brakes once the wind becomes too fast. The blades are angled so the wind above a certain speed will cause turbulence on the upward side of the blade, including stall. Simply stated, aerodynamically stall occurs when the blade's angle facing the oncoming wind becomes so steep that it starts to eliminate the force of lift, decreasing the speed of the blade. So active stall control, the blade in this type of power control system are pitchable like in the pitch control system. An active stall system reads the power output the way pitch control system does. But instead of pitching the blade out of alignment with the wind, it pitches them to produce stall. So इसमें आप रोटर को एडजस्ट करके तो इसमें स्टॉल की कंडीशन क्रिएट करा। So
Real wind turbine blades are optimized to generate a lot of torque and lift with very little drag. This is not an easy task. Wind turbine blade engineers have degrees in aeronautical engineering and expensive computer software at their fingertips. But they understand the relationship between torque, drag, and lift. You can design some great blades with simple materials. Wind turbine blade variable to explore: blade shape, blade size, number of blades, angle of blades, blade material, aerofoil shapes, twisted pitch blades. So wind power technology is, you can see this kind of things, right? Uh, Almost all electrical power on Earth is produced with turbine of some time. Turbines converting rectilinear flow motion to short rotation through rotating aerofoils. So they are saying that most of the energy is produced by using some kind of turbines. Idle power के लिए हम turbine use कर रहे हैं, ठीक है. Steam turbines, ठीक है, जो जियोथर्मल में यूज हो रही हैं, जो वैसे हम यूज कर रहे होते हैं पावर प्लांट्स में. गैस टर्बाइंस, ठीक है. So a number of turbines we used, different types of turbines we used. So these are horizontal and vertical axis turbines. Single to many blades, 2 to 3 most efficient, upwind, downwind facing, downwind facing, solidity, aspect ratio, speed and torque, shrouded, ducted diffusers. Shroud का मतलब है कि आपने उसको साइडों पे कवर कर दिया हुआ है, जैसे ये दिखाया हुआ है, ठीक है. This is shrouded. Diffuser augmented wind turbines. Vertical में Darius and Savonius. So इसके जो उनसे components हैं वो क्या हैं? So this is the body, which is nozzle. This is yaw control. This is tower. Foundation, foundation इसके नीचे होगी, जिसके ऊपर ये लगी हुई है, ठीक है. Then tower, nozzle, hub and rotor, ये वाला portion, ठीक है. Drivetrain, drivetrain में gearbox and generator है. This is drivetrain, ठीक है. ये shaft, ये gearbox, ये generator. Electronics and control, yaw control, pitch जो सा ये वाली rotation है, ठीक है. Braking, ये वाली लगी हुई है इस पे ब्रेक, ठीक है, जो जनरेटर को स्टॉप कर रही है शाफ्ट के साथ. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एंड कूलिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम. एवोल्यूशन फ्रॉम ट्रस टू मोनोपोल टावर्स. पहले जो उनसे ट्रस बेस्ड टावर होता था, अब ये मोनोपोल है. हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े टावर जो उनसे हैं ये लगे हुए हैं, वो भी ट्रस बेस्ड हैं, ठीक है. अब वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल मोनोपोल टावर के ऊपर. अच्छा, nozzle, rotor and hub. Main rotor design method: determine the basic configuration, orientation and blade numbers, take site wind speed and desired power, calculate rotor diameter, select tip speed ratio, higher more complex aerofoil, noise and blade number, higher efficiency with more blades. Design blade including angle of attack, lift and drag characteristics. Combine the theory or empirical methods to determine optimum blade shape. Blade tip speed जो सी है वो यहाँ ये वाली स्पीड है, ठीक है, जो इसकी टिप के ऊपर होगी. जाहिर है ये स्पीड जो सी है, डायमीटर बढ़ाओगे तो टेंजेंशियल स्पीड v = r ओमेगा ये बढ़ती जाएगी. ये 2 ब्लेड सिस्टम है एंड टीटर्ड हब्स. ये पिच कंट्रोल ब्लेड को हम एडजस्ट कर रहे हैं. Then there are 2 types of generators used: synchronous permanent magnet generator और asynchronous induction generators. फिर उसके बाद control methods and drivetrain speed, fixed and variable for indirect grid connection, blade regulation, stall blade position fixed, angle of attack increases with wind speed, pitch, blade position changes with wind speed to actively control the low speed shaft for more clean power curve.
ये उसके बाद ग्रिड में जो सा वो किस तरह से आपने उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब आपको इसमें स्टोरेज भी करनी पड़ सकती है, और उसके बाद आप जो सा इसमें इसकी स्पीड डिफरेंट होगी, इस वजह से आपकी वो जो सी है इलेक्ट्रिसिटी भी जो सी है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो आप स्टोरेज के लिए फ्लाई व्हील यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। कंप्रेस्ड एयर, फ्लाई व्हील के आपने व्हील को रोटेट करवा लिया और उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंप्रेस्ड एयर के आप डिफरेंट सिलेंडर्स में प्रेशर के साथ एयर को भरते जा रहे हैं और उसको रिलीज करवा के आप जिनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। पम्प्ड हाइड्रो, ये हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें आप पानी को ऊपर किसी जगह पे स्टोर कर दें और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दें। हाइड्रोजन व्हीकल टू ग्रिड, improving performance, capacity, higher heights, larger blades, superconducting magnets, जो इसमें फ्यूचर के लिए काम करने के लिए जो चीज़ें हैं। Capacity factors, higher heights, advanced control methods, individual pitch, smart blades, site specific design, reducing cost, weight reduction, two blade design, advanced materials, direct drive systems, offshore winds, ठीक है, foundations, construction and maintenance, improving reliability and availability, forecasting tools, dealing with system loads, advanced control methods, materials, preemptive diagnostics and maintenance, novel designs, shrouded, floating, direct drive and high altitude concepts. ये shrouded हो गई, ठीक है, ये इसके बीच साइड के ऊपर आपने लगा दिया, इससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूव हो जाती है इसकी परफॉर्मेंस। ये सस्पेंडेड है स्काई में, कि आप ऊंची बादलों में ऊपर कहीं सस्पेंड इसको कर दो, किसी तरीके से फ्लोट करवा रहे हो, फ्लोटिंग, डायरेक्ट ड्राइव, हाई एल्टीट्यूड कॉन्सेप्ट्स। सो अब ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन डिटेल्स है। टाइम मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया, जस्ट इसमें हम देख लेते हैं, इसको आप गो थ्रू, अदरवाइज आप कर लेना। मेरा ख्याल दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। टावर, या कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है, ये पिच कंट्रोल का दिखाया हुआ है कि पिच इसके साथ सारे ब्लेड अटैच हैं इस मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। सॉरी, ये रोटर हब है जिसके साथ ये 3 ब्लेड्स अटैच हैं, और ये पिच कंट्रोल है, ठीक है। और रोलर बेरिंग्स, बेरिंग यहाँ पे आ गया, मेन शाफ्ट, मेन फ्रेम ये वाला है, इसके ऊपर ये या कंट्रोल आप कर रहे हैं। गियर बॉक्स, ठीक है, ये गियर बॉक्स आ गया। जनरेटर, ये जनरेटर है, ठीक है। या सिस्टम, पावर कन्वर्टर, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स, ब्रेक सिस्टम और नोजल हाउसिंग ये वाली, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स। अगर आपको कंपोनेंट्स कहे जाएं तो वो आपने बताने के काबिल होना चाहिए। इसके एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पे इसका एक नॉइज़ का इशू आता है, ठीक है। जितनी बड़ी टरबाइन होगी उसका नॉइज़ भी कुछ होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि यूएसए में ये ऑब्जर्व किया गया कि टेम्परेचर जो है उस जगह पर जिधर ये लगी होती है उसके करीब बढ़ जाता है, क्योंकि विंड की स्पीड हमने कम कर दी, ठीक है। तो अदरवाइज इट्स वेरी क्लीन, ये क्लीन है, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं कर रही, एनवायरनमेंट को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रही। So I think this is enough for today. Next we had to discuss in Pakistan and potential of wind energy in Pakistan. Coastal areas में है, कुछ ये वाले areas हैं, ये हमारा एयर कॉरिडोर है जहाँ पे हमारे सारे wind turbines लगी हुई हैं, और कुछ ये माउंटेन एरियाज में, कुछ यहाँ पे बलूचिस्तान में। So I think that's enough for today. Thank you very much. सर ये स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है। सर ये जो लेक्चर है वो अपलोड तो हुए हैं लेकिन एसेस नहीं मिलती, तो काइंडली वो भी एसेस दे दें अपने अकाउंट की। यार ये मुझे नहीं समझ आती, आपको एक्सेस क्यों नहीं मिलती है? सर वो कहते हैं रिक्वेस्ट सेंड करते हैं हम आपको, तो वो कह रहे हैं एसेस आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर एसेस मिलेगी। अच्छा चले, मैं उसको ना किसी दिन बैठ के वो सारे आपकी मेल पे वो एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। और कोई बात? और तो कोई बात नहीं है ना? नो सर। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम इसको ख़त्म करते हैं आज के लिए।